امام زمانہ کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے گا۔ سید کونین کی خوشنودی کے لیے پھر بھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب علیہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم۔ سبحان من لبس البہجت والجمال، سبحان من تردہ بالنور والوقار، سبحان من یرا وسر النمل فی الصفائر، سبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا، سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ، سبحان من نورا قلبی و قلوب المومنین بولایت علی بن ابی طالب والمودت اولادہم المعصومین، رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع، رب البحر المسجور والمنزل التوراۃ والانجیل والزبور، رب الذل والحرور والمنزل القرآن العظیم، رب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین، رب الجنۃ والناس، رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والکافرین والمنافقین والغالین والمقصرین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المصدق والبشیر المؤید المصطفى الأحمد صاحب التاج والمراج، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، لا سيما على ابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته وصاحب اللوائه الحبل الله المتين والقرآن الكريم والصراط المستقيم، أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين، امام المسلمین هو الصدیق الاکبر والفاروق العظم علی بن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین المعصومین، ورحم اللہ علی صحابہ المنتجبین وشیعتہم ومحبہم اجمعین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیات علی اعداء الملعونین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات کو۔ عزیزداران امام مسلم کربلا، ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسول بھیجے ہیں، اللہ نے رسول بھیجے ہیں۔ دیکھیے، خدا نے رسول بھیجے تو ہیں، اس میں کوئی بحث ہی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تمام نبی، تمام رسول جزوی رسول اور جزوی نبی، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام نبی جزوی نبی ہیں، فقط مطلق نبی جو ہیں وہ میرے مولا و آقا سرکار ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سوال کریں، قبلہ جزوی نبی سارے اور مطلق نبی، تو قرآن نے اس کے دلائل پیش کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
व इसकाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। अल्लाह ने मलाइका से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। यानी आदम खलीफा है, लेकिन जमीन पर जहां जहां जमीन है वहां वहां आदम की खिलाफत है। जहां जमीन खत्म आदम की खिलाफत खत्म। जी, जहां जमीन खत्म आदम की खिलाफत खत्म। कुरान ने फिर बढ़कर सदा दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इसकाला नूहन लिकौमिही या कौम इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम। और जब नूह ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं। कितनी कौम है नूह की? 2500 बरस सिन है जनाब नूह का। 950 बरस सरकारे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग की और कौम में फकत 80 लोग निकल के सामने। तो जनाबे नूह की रिसालत 80 लोगों तक। तो कुरान ने क्या कहा कि रसूल नूह ने कहा, ऐ कौम, मैं तुम्हारी तरफ जहां नूह की कौम खत्म हुई, नूह की रिसालत खत्म। जी, अगर मैं बात वाज़ेह कर पा रहा हूं। और फिर कुरान ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। हमने इब्राहीम को आजमाया, जब वो कामयाब हुआ, तवज्जो है आपकी, जब वो कामयाब हुआ तो हमने कहा, इब्राहीम, हमने तुम्हें इंसानों का इमाम बताया। पहली बात तो ये है कि इमाम बनने के लिए इम्तिहान देने पड़ते हैं। हर बंदा इमाम बन नहीं सकता। इमाम बनने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ को हर बंदा इमाम बन नहीं सकता। इमाम बनने के लिए इम्तिहान देना पड़ता है। और कुरान कह रहा है कि इब्राहिम, बेटे आपको बात समझ आ रही है? कुरान कह रहा है कि इब्राहिम की इमामत इंसानों तक है। जहां इंसानियत खत्म, इब्राहिम की इमामत रुक गई। और यही हाल मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आयत के अल्फाज कुछ तब्दील करके कुरान ने इरशाद फरमाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इसकाला मूसा लिकौमिही या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम। मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ बनी इसराईल, मैं तुम्हारी तरफ रसूल हूं। गोया मूसा बनी इसराईल के रसूल हैं। ईसा ने कहा, या कौम इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम, ऐ कौम, मैं तुम्हारी जानिब रसूल बनाकर भेजा गया हूं। तो ईसा और मूसा की रिसालतें भी उनकी कौम तक, आदम की खिलाफत जमीन तक, नूह की रिसालत उनकी कौम तक, इब्राहिम की इमामत इंसानों तक, मूसा और ईसा की रिसालतें उनकी कौम तक। ये है सब मुतलिक, ये है सब माज़रत, ये है सब जुज़वी नबी। अब वक्त आया मुतलिक नबी का, तो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिनकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। हमने आलमीन के लिए नज़ीर बनाकर भेजा। हमने भेजा ही नहीं है, हमने नहीं भेजा, मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर। कितने हैं आलमीन? उलमा बयान करते हैं 18,000 आलमीन। जी, 18,000 आलमीन। तो अल्लाह ने रसूल भेजे हैं। और फिर आयत कहती है कि हमने रसूलों को मोजज़े दिए। जी, हमने रसूलों को मोजज़े दिया। जितना रसूल का, जितना नबी का मर्तबा होगा, उस मर्तबे के हिसाब से उसका मोजज़ा होगा। जनाब नूह अलैहिस्सलाम, देखिए सरकार नूह अलैहिस्सलाम, आप में से ज़ायरीन बैठे होंगे, कूफा जनाब नूह अलैहिस्सलाम का शहर है। आपने कूफे के शहर में कश्ती बनानी शुरू की। जो मोमिनीन गए हैं उन्होंने जनाब नूह के घर की भी ज़ियारत की। लोगों ने कहा कि नूह नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा मिन ज़ालिक अयाज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नक़्ल कुफ़्र कुफ़्र नबाशत का नूह सठिया गए, नाउज़ुबिल्लाह। क्यों? सेहरा में कश्ती बना रहे हैं। ये काफिरों की पुरानी आदत है। ये काफिरों की पुरानी आदत है कि वो अल्लाह की हुज्जत के ज़हन पर हमला करते हैं। जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कश्ती बनाई तो देखिए बेटे, जब खिताब सिर्फ जवानों से, बुजुर्गों से नहीं, हमसिन और कमसिन बच्चों से, भाइयों से कह रहे हैं। बेटे आपको बात समझ आ रही है? जनाब नूह ने जब कश्ती बनानी शुरू की तो एक औरत रोजाना अपनी गठरी उठाकर आ जाती थी, या रसूल अल्लाह कश्ती तैयार हो गई। जनाब नूह कहते थे, मुअज़्ज़मा बीबी, आप, मैं आपको कल बता दूंगा, आप जाइए। अगले दिन फिर आ गई, या रसूल अल्लाह कश्ती तैयार हो गई।
کہا بی بی میں آپ کو بتا دوں گا، آپ کیوں پریشان ہوتے؟ جب کچھ دن آتی رہی تو جناب نوح نے کہا بی بی آپ زحمت نہ کریں، جب کشتی تیار ہوگی میں آپ کو خود بلا لوں گا، جب کشتی تیار ہوگی میں آپ کو خود بنا لوں گا۔ معظمہ وہ خاتون جا کر بوڑھی بیچاری غریب خاتون تھی، اپنی جھونپڑی میں بیٹھ رہی، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ اب تاریخ لکھتی ہے، تفاسیر نے لکھا کہ زمین کے دریچے کھل گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے، 6 مہینے تک بارش ہوتی رہی۔ کتنا عرصہ؟ یہاں 1-2 گھنٹہ بارش ہو تو کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے، ہم نے بھی 2-3 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو جاتا ہے، پشاور میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں 6 مہینے بارش ہو، سوچیں کتنا پانی ہوگا جی، سوچئے گا۔ تو بس ایک مرتبہ کوہ جودی پہ جب کشتی ٹھہری اور جناب نوح کشتی سے باہر آئے، اللہ نے کہا کہ ہم نے نوح کے ذہن سے محو کر دیا، ہم نے نوح کے ذہن سے محو کر دیا کہ اس خاتون کو لانا تھا۔ جناب نوح آئے، کشتی میں لوگوں کو لے گئے، طوفان گزر گیا، اترے تو خدا نے یاد کروایا۔ اب نوح کو یاد آیا کہ وہ عورت جو روز آتی تھی، دوڑے ایک مرتبہ، دیکھا تو اس کی جھونپڑی سلامت ہے، اللہ اکبر، دیکھا تو اس کی جھونپڑی سلامت ہے، باہر سے آواز دی، خاتون فوراً دوڑتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ کشتی تیار ہو گئی۔ جناب نوح حیران، کہا تجھے کچھ پتا نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کہا تجھے کچھ نہیں پتا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا طوفان۔ کہا یا رسول اللہ کون سا طوفان؟ یا نبی اللہ کون سا طوفان؟ ہاں ایک دن تھوڑی سی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی تھی۔ اللہ نے کہا نوح اگر اسے کچھ ہوتا تو یہ ہم پر سوال اٹھ جاتا، یہ تم پر ایمان رکھتی تھی، ہم نے تمہیں بلا کر بتایا کہ جو ہماری حجت سے متمسک ہو جائے چاہے میلوں دور ہو ہم بچائیں گے، اور جو ہماری حجت کا دشمن اگر ساتھ بھی بیٹھا ہو۔ نوح اگر ہماری حجت کا دشمن چاہے ساتھ قبر کیوں نہ ہو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اذان گران کے جناب نوح کا معجزہ ہے یہ طوفان، یہ طوفان نوح جناب نوح کا معجزہ ہے، لیکن یہ چھوٹا سا معجزہ ہے، اللہ بڑی چھوٹا سا معجزہ ہے۔ علماء تفاسیر نے لکھا، علماء رفانیات نے لکھا، تفسیر قمی، تفسیر عیاشی، تفسیر امام حسن عسکری، تفسیر انوار النجف اور تفسیر نور الثقلین، 5 کتابوں کے نام میں نے بتا دیا آپ کو، جائیے اٹھائیے اور دیکھیے۔ علماء نے لکھا کہ نوح علیہ السلام کا جو طوفان تھا وہ معجزہ تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے نبیوں کو معجزے، بیٹے بات منتقل ہو رہی ہے، ہم نے نبیوں کو معجزے بھیج دیے ہیں، لیکن یہ معجزہ چھوٹا تھا، یہ معجزہ چھوٹا تھا۔ منزل آگے بڑھی، بڑے مرتبے کا نبی آیا، کون؟ موسیٰ، اللہ کا لاڈلا نبی۔ اس پر علماء نے بہت بحث لکھی ہے۔ جناب موسیٰ کے بڑے لاڈ اٹھائیں گے پروردگار عالم نے، لاڈلے نبی، اتنے لاڈلے کہ ملک الموت کو تھپڑ رسید کر دیا، ملک الموت آیا تھپڑ رسید کر دیا۔ بہرحال اس وقت عنوان نہیں، عزیزان گرامی قدر، تو جناب موسیٰ کو اللہ نے معجزہ عطا کیا، آپ جانتے ہیں عصائے موسیٰ، سارے معجزات آپ نے سنے ہوئے، میں صرف تسلسل لینا چاہتا ہوں۔ اب جناب موسیٰ کو اگر چلتے چلتے تھکتے ہیں تو اس کو سواری بنا لیتے ہیں، اگر بھوک لگتی ہے تو زمین میں گاڑا درخت بن گیا، پھل وغیرہ لے لیے اس سے، دریا میں ڈالا جی، راستے بن گئے، پتھر پہ مارا، چشمے نکل گئے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ متوسط درجے کا معجزہ ہے۔ کیسے کہ کوئی اور عصا، کوئی اور ڈنڈا سوٹا اگر موسیٰ اٹھا لیں تو وہ معجزہ نہیں دکھائے گا، وہی عصا ہونا چاہیے جو اللہ نے دیا ہے، عصا وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور اگر یہ عصا مولوی عبدالرحمان کے ہاتھ لگ جائے تو بھی اپنے جوہر نہیں دکھائے گا، اپنے کمال، یعنی عصا جب تک لمس موسیٰ کو محسوس نہ کرے۔ دیکھیے موسیٰ نے فرعون کے دربار میں پھینکا عصا، جانتے ہیں کیا ہوا بیٹے؟ اجدا بن گیا نا۔ کیا کیا اس نے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑھایا جاتا، کیا کیا اس نے بتائیے گا؟ سارے سانپوں کو کھا گیا، جادوگروں کو کھا گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جادوگروں کو کھانے کے بعد ایک مرتبہ فرعون کی طرف پلٹا، لپکا، اور فرعون نے کہا موسیٰ بچانا، موسیٰ بچانا۔ اللہ نے وحی کی، موسیٰ ہم فرعونوں کو یوں ہی سانپوں سے ڈرایا کرتے ہیں،
हम फिरौनों को यूं ही सांपों से डराया करते हैं, मूसा हमने इसे तुम्हारे कदमों में गिरा दिया है, अब ये मजबूर है कि तुम्हें कह रहा है मूसा बचाओ। ये छोटे दर्जे का मौजज़ा। अजीज़ान गिरामी कदर, एक मर्तबा मंजिल आगे बढ़ी, सबसे बड़ा नबी आ गया, सबसे अजीम नबी आ गया। कौन? जो काबा कौसैन ओ अदना तक गया है। कौन सा रसूल? जिसको अल्लाह ने कहा, जनाब मूसा जब वादी तौबा में दाखिल हुए तो खुदा ने कहा मूसा अपनी नालैन उतार दीजिए, आप मुकद्दस वादी में दाखिल हो रहे हैं। जब रसूल खुदा गए तो रसूल के जहन में था वाकया, आपने एक मर्तबा अजीब नुक्ता लिखा है उलमा ने, जूती उतारी नहीं, इरादा किया, सोचा कि जूती उतारूं। अल्लाह ने कहा हबीब जूती के साथ आ जाओ। अल्लाह को बर्दाश्त नहीं होता कि नूर की शुआएं तुम्हारे तलवों को चुभे। खुदा की जात को बर्दाश्त होता है, हबीब जूती के साथ आ जाओ। अज़ान इब्राहिम कदर। अब नबी कितना बड़ा है? जो नबी इतना बड़ा है तो मौजज़ा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए जी। अब नबी जब इतना बड़ा है तो मौजज़ा भी, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जब नबी इतना बड़ा है तो मौजज़ा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। अल्लाह ने मौजज़ा अता किया आले मोहम्मद की शक्ल में। अब आले मोहम्मद ने कभी ये नहीं कहा, जो जब जहां जो कहा, इमाम हसन अजीज़ान गिरामी कदर, जब जहां जो कहा वो हो गया। यानी देखिए कंकर उठाए तो कलमा पढ़ रहे हैं, दरख्त को इशारा किया तो दरख्त आ गया, चांद को इशारा किया, चांद दो नींद हो गया। लोग कहते हैं हम जैसे थे, इशारा करें जरा, चांद तो दूर की बात है, किसी चिड़िया को इशारा करके बुला ले, देखें हम के कितना आप जैसे थे। अजीज़ान गिरामी कदर, इतना बड़ा मौजज़ा अता किया अल्लाह ने, और फिर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तशाऊना सलामत है इल्ला अन यशा अल्लाह। ये तो कुछ चाहते ही नहीं है मगर वो जो अल्लाह चाहता है। इतना बड़ा मौजज़ा कि इमाम हसन ने मस्जिद कूफा में कहा तुझे शर्म नहीं आती, मर्दों के मजमे में क्या कर रही है, मर्द से औरत हो गया। बहुत बाद शहादत अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन मस्जिद कूफा में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और खुतबा इरशाद फरमाते हुए एक मरतबा मेरे इमाम ने कहा हम चाहें तो शाम को कूफा और कूफा को शाम कर दें। ये शामी था, ज़ौजा इसकी कूफा की थी, उठा कहा या हसन ए अली के बेटे, इतना बड़ा दावा। इमाम ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, मर्दों के मजमे में क्या कर रही है? अब जो उसने देखा तो मर्द से औरत हो। देखिए अच्छा बस एक मिनट मुझे इजाजत दीजिएगा, 1 मिनट लगेगा इस बात को वाज़ेह करने में। ये वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये क्या चीज है? खुदा ने कहा ये कुछ नहीं चाहते, ये वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, जो अल्लाह चाहता है। देखिए इंसान की चाहत, ये आप आज फर्श अज़ा पर क्यों बैठे हैं? आपको चाहत है ना? दुनिया क्या कर रही है? गर्मी में अपने आप को बचाने के लिए लोग छुट्टियां मनाने के लिए कावान और नारायण गए हैं जी। आपको क्या पड़ी इस गर्मी में ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठने की? चाहत है ना जी, चाहत है ना। याद रखिएगा, अगर कोई मेरे मेडिकल के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई डॉक्टर्स बैठे, कितने बैठे होंगे मजमे में? चाहत होती है समाअत से, जो आप सुनते रहेंगे उससे प्यार हो जाएगा। तो आप शिकम मादर में जी, आप शिकम मादर में ये सब कुछ सुनते रहे हैं, और जेस्टेशन पीरियड में, हमल के दौरान साइंस ने ये बात अब साबित कर दी है कि सबसे पहले जो चीज काम करना शुरू करती, जो हिस, जो सेंस, वो कुव्वत समाअत है, पावर ऑफ, यानी सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की ताकत। सुनने की ताकत सबसे पहले जो है वो काम करना शुरू करती है बच्चा शिकम मादर में। इसीलिए कहा गया कुरान पढ़ो। जब खातून इस दौरानिये में हो तो कुरान पढ़े, तिलावत करे, ज़ियारत आशूरा पढ़े, मजालिस आज़ा सुने, मरसिये सुने। क्यों? कि वो यही तो हुआ ना आपके साथ, आपकी माओ ने आपको वतन में ये कुछ सुनाया है। देखिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, तो बेटे ये बात आपको समझ आई कि चाहत जो है वो समाअत से होती है। जो सुनते जाएंगे
وہ چاہت ہو جائے گی. اور چاہت جو ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کی منشا مرضی بنتی. آپ کی مرضی ہوئی, آپ کو چاہت تھی اس فرش ازا سے تو آپ نے مرضی بنائی اپنی, بلکہ بنی لاشعور میں مرضی بنی کہ ہم مجلس میں جائیں گے. لاشعور میں ہم آپ کی مرضی بن گئی کہ ہم مجلس میں, کل عاشورے کا دن ہے, کچھ بھی ہو جائے معاف کیجئے گا, ہم مجلس میں جائیں گے. تو چاہت بنتی ہے سماعت سے, اور چاہت جو ہے منشا اور مرضی چاہت کے تابع ہے. یعنی آپ کی مرضی, آپ کی خواہش کے چاہت کے تابع. اللہ نے کیا کہا, وما تشاؤون, یہ کچھ نہیں چاہتے, یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہے الا ان شاء اللہ, مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ چاہت سماعت سے بنتی ہے, تو انہوں نے کسے سنا, انہوں نے کسے سنا کہ اس سننے کی وجہ سے اللہ کی مرضیاں ان کی مرضیاں ہو گئی. اور ان کی مرضیاں دیکھیے, جب اللہ نے انہیں خلق کیا تو کچھ تھا ہی نہیں, یا وہ تھا یا یہ تھے, وہ کہتا تھا یہ سنتے تھے, سن سن کے اللہ کی مرضی کے مالک بن گئے. سن سن کے اللہ کی, اگر اللہ کی مرضی کے مالک بن گئے تھے. اب عزیزان گرامی قدر, امیر المومنین علیہ السلام, بہت سارے کتنے معجزات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آل محمد کے بے تحاشا چلنا, آل محمد کی زندگی معجزہ, آل محمد کا چلنا معجزہ, آل محمد کا دنیا میں آنا معجزہ, آل محمد کا دنیا سے جانا معجزہ, حتیٰ کہ آل محمد کی کنیز 20 برس قرآن کی آیت کے علاوہ گفتگو ہی نہیں کی. کون؟ میری شہزادی جناب فضہ خاتون صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا 20 برس قرآن کی آیت کے علاوہ جناب فضہ خاتون نے گفتگو ہوئی نہیں کی. عزیزان گرامی قدر, اللہ نے کہا ہم نے معجزہ دیا, اتنا بڑا معجزہ دیا اللہ نے رسول خدا کو. مسلمانوں نے اس معجزے کو ختم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. میں نے بات ختم کی, اس معجزے کی بے توقیری کرنے میں مسلمانوں میں آ گیا ہے. عاشور کا دن گزر گیا ہے, معاف کریں گے مجھے آپ, اگر مصیبت آپ کے دل پہ لگے, میں مصائب چھپانے کا قائل نہیں ہوں. اللہ آپ کی عزاداریاں قبول فرمائے, لیکن گھروں کو جا کر شام کے بعد سو جائیں گے سب. علی کی بیٹی جس نے کبھی بابا سے بات نہ کی تھی, اس دن سے ڈرتی تھی زینب, اور سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس کا پردہ اتارے. لیکن ایک مرتبہ کربلا میں کہتی ہیں, جب عباس نے کہا نا بی بی میں جا رہا ہوں, تو کہا مجھے یقین ہو گیا, بی بی ہو میں پردے کی ضامن نہیں, میں ضمانت واپس لے رہی ہوں. عزادارو, کوئی نہیں بچا حسین کا. فاطمہ زہرا کا بیٹا یکو تنہا رہ گیا, اکیلا رہ گیا, غریب ہو گیا حسین. ایک مرتبہ اس جگہ آئے جہاں لاشیں رکھے تھے, میری جانب دیکھیں گے آپ ایک لمحے کے لیے, ماتم کریں گے. آپ کے مذہب میں ماتم کرنا عین عبادت ہے. ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پہ رکھا, ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پہ رکھا, آسمان کو دیکھا, اماں تمہارا حسین غریب ہو گیا, واہ غربتا واہ مصیبتا کی صدائیں بلند کی. یہ صدا سنی سید سجاد نے, کہا پھپھی اماں میرا بابا غربت کی آواز دے رہا ہے میرے ہوتے ہوئے. کہا نہیں میرے بچے, میرے لال, تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, سجاد تم باہر نہیں جا سکتے ہو. عزادارو عزادارو, بس امام ذوالفقار کے دستے پہ سر رکھے ہوئے کربلا کی تپتی ریت پر بیٹھے ہوئے ہیں, تپتی ریت پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ مقتل نے لکھا, ابھی مخنف نے لکھا, لہوف نے لکھا, دربندی نے, تمام مقاتل نے لکھا کہ ایک مرتبہ حسین کو اپنے زخموں میں ٹھنڈک محسوس ہوئی, دھوپ کی تمازت کم محسوس ہوئی. امام نے اپنا سر اٹھایا, کہا جبرائیل اپنے پروں کو ہٹا دے, جبرائیل یہ پر ہٹا دے, یہ دھوپ حسین تک آنے دے. جبرائیل رو کر کہتا ہے, آقا میں نے جھولا جھلایا ہے آپ کا, میں کیسے برداشت کروں, حسین کو دھوپ لگ رہی ہے. حسین کہتے ہیں جبرائیل
रसूल को बचाना है। बस अज़ादारो एक मरतबा खैमे के दरवाजे पर आकर कहते हैं, या ज़ैनब व या उम्मा कुलसूम, या सकीना तो व या उम्र बाग, या फिज़्ज़त व या रुक़य्या, अलैकुन्ना मिन्नी अस्सलाम, बीवियो हुसैन का आखिरी सलाम कबूल हो। ज़ैनब ने सुना, फिज़्ज़ा से कहा, अम्मा मेरे भाई से कहो खैमे के अंदर आ जाए। अज़ादारो हुसैन खैमे के अंदर दाखिल हुए। फिज़्ज़ा आलिया से कहते हैं, फिज़्ज़ा जरा मेरी माँ के तबर्रुकात वाला संदूक तो ले आना, जरा मेरी माँ के तबर्रुकात वाला संदूक तो ले आना। जनाब फिज़्ज़ा लेकर आई हैं। एक मर्तबा ज़ैनब खातून ने देखा और रोकर कहती हैं, अम्मा ये बुरके में क्या छुपा रही हो? फिज़्ज़ा कहती हैं, बीबी हुसैन ने तबर्रुकात मंगवाए हैं। ज़ैनब रोकर कहती है, अम्मा ऐसे कहो कि मेरा भाई कफन मांग रहा है। अज़ादारो तबर्रुकात को खोला, अमामा रसूल निकाल के सर पे रखा, कबाए रसूल को ज़ेरे तन किया, अबाए रसूल को दोष पर डाला। एक मर्तबा पटकाए रसूल को, अपनी खुदा के लिए बैठ जाइएगा, मुझे मसाइब पढ़ने दीजिएगा। अब पटकाए रसूल को अपनी कमर में आहमाइल किया हुसैन ने। और अब इसके बाद कहते हैं, इसके बाद जनाब ज़ैनब खातून कहती है, मैंने देखा हुसैन ने अपने लिबास को तार तार करना शुरू कर दिया, हुसैन ने अपने लिबास को फाड़ना शुरू कर दिया। बीबी रोकर कहती है, भैया जन्नत से लिबास आते हैं मेरे इमाम के, ये क्यों इसी गुर्बत का हालत किया आका आलम बना रहे हैं? कभी भी ये लोग ये लिबास भी ना छोड़ेंगे। और फटा हुआ लिबास देख कर शायद इस लिबास को अरे मेरे जिस्म पर छोड़ दिया जाए। अजीजों बस जब ज़ैनब को यकीन हो गया ना, ज़ैनब ने बीवियों को बुलाया, मेरा हुसैन जा रहा है। मक्तल कहता है बीवियों ने हुसैन के गिर्द हाला बना लिया। किसी बीबी ने हुसैन का हाथ पकड़ा हुआ है, किसी बीबी ने हुसैन के अमा को पकड़ा हुआ है, किसी बीबी ने हुसैन के कदमों को पकड़ा हुआ है। और बीवियां रोकर बैन कर रही हैं, वाह मोहम्मदा वाह जाफरा वाह अलिया वाह हमज़ा वाह अब्बासा वाह हसना। भैया हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? कोई कह रही है आका हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं, कोई कह रही है बाबा किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं। अज़ादारो हुसैन ने कहा, ज़ैनब मेरे लाल सब्र करना होगा, मेरी जान सब्र करना होगा। ज़ैनब मैं तो दीन बचाकर जा रहा हूँ, लेकिन हुसैनियत तुम्हें बचानी होगी। बीबी मैं तो लश्कर यजीद पर हमला कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यजीद पर हमला करना होगा। अजीजों बस एक मर्तबा कहा, अच्छा। तो ज़ैनब ने कहा, भैया जरा अपने गिरेबान को खोलना। अब जो गिरेबान को खोला, कहा भैया जरा मेरे करीब आना। हुसैन करीब आए। एक मर्तबा ज़ैनब ने गुलूए अक़दस के बोसे लिए। इमाम ने रो कर कहा, बीबी ये क्या कर रही हैं? कहा भैया मैं अम्मा की वसीयत पूरी कर रही हूँ। अम्मा ने कहा था, ज़ैनब जब हुसैन विदाए आखिर के लिए आए तो हुसैन के गले के बोसे लेना। कहा अच्छा बीबी अगर वसीयत की बात है तो 21 रमजान की सुबह को बाबा अली ने भी मुझे एक वसीयत की थी, जरा अपनी आस्तीनों को उलटना। अब जो आस्तीनें उल्टी कलाइयों के बोसे लिए हाय यहाँ रस्सियां डाली जाएंगी। अज़ादारो हुसैन ज़ैनब से कहते हैं, ज़ैनब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बीवी कहती है, आका मैं हाजिर हूँ, हुक्म करें। कहा ज़ैनब मुझे सज्जाद से रुखसत दिलवा दो, मुझे सज्जाद से रुखसत दिलवा दो। अजीजों जानते हैं आप, खुदा किसी को ये मंजर ना दिखाए, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब चली। सज्जाद जिन्होंने ज़ियारत की है गवाही देंगे। इमाम हुसैन के खेमे के पीछे है मेरे इमाम सज्जाद का खेमा। सज्जाद के खेमे में तशरीफ लेकर आई। उम्मे कुलसूम ने एक बाजू से पकड़ा, एक बाजू से ज़ैनब आलिया ने पकड़ा, सज्जाद को बिठाया, मेरे करबला के बीमार इमाम को बिठाया। जनाबे उम्मे कुलसूम मेरी जानिब देखें, इमाम सज्जाद के पीछे कमर के पीछे सहारा बनकर बैठ गई, क्योंकि इमाम बैठने की सकत न रखते थे ज़ौफ़ की वजह से। ढलकी हुई गर्दन है सज्जाद की। ज़ैनब सज्जाद की रीशे अक़दस को सहला कर कह रही है, सज्जाद मेरे लाल जरा आंखें खोलो, तुम्हारा बाबा सज्जाद जरा आंखें खोलो, बाबा मिलने के लिए आए हैं। मक्तल कहता है, अब जो सज्जाद ने आंखें खोली, एक मर्तबा चीख कर कहा, अम्मा ये कौन ना महरम है? इतना जख्मी थे हुसैन, सज्जाद पहचान न सके। कहा बेटे तेरा बाबा है। अजीजों मैंने अभी भी एक जुमला पढ़ के आया हूं, सज्जाद को अब तक अब्बास की
की शहादत की खबर नहीं दी गई। क्यों कि सज्जाद बीमार हैं, कई शिद्दत गम से रूह का फसे अंसरी से परवाज न कर जाए। इमाम ने कहा खबरदार कोई सज्जाद को अब्बास की शहादत के बारे में इत्तला ना दे। अब सज्जाद ने पूछना शुरू किया, या अबताओ आईना हबीब बना मज़ाहिर, बाबा हबीब कहाँ है? आईना ज़ुहैर इब्न कैन, बाबा ज़ुहैर कहाँ है? आईना मुस्लिम इब्न उसजा, बाबा मुस्लिम इब्न उसजा कहाँ है? बाबा आईना अखी अलीउल अकबर, बाबा मेरा शबीह रसूल कहा। अब हुसैन ने भांपा कि इसके बाद अब्बास का पूछेंगे तो कहा सज्जाद किस किस का पूछोगे? बस ये समझो मर्दों में या तुम हो या ये तुम्हारा ज़ख्मी बाबा। अज़ादारो सज्जाद कहते हैं अम्मा जरा मेरा असा ला के देना, मेरी तलवार ला कर देना। हुसैन ने रोना शुरू किया, कहा बीबी ऐसा ना हो कि जमीन हुज्जत से खाली हो जाए, सज्जाद को खैमे से बाहर न जाने दीजिए। बस अजीजो मक्तल कहता है, अभी मेरे भाई ने मस्ती में पढ़ा, हुसैन घर से ऐसे निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है, जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। एक मर्तबा नहरे अलकमा को देखा, अब्बास मुझे कौन सवार कराएगा? अली अकबर कासिम बेटे बाबा को चचा को कौन सवार कराएगा? ज़ैनब आगे बढ़ी, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, रुकैया खातून आगे बढ़ी। कहा मौला हम हैं, आप गरीब गुर्बत के नाले न बुलंद कीजिए। उम्मे कुलसूम ने जुलजना की रकाब को पकड़ा, रुकैया खातून ने जुलजना की जो पैर रखने का कदमदान होता है उसको पकड़ा, और एक मर्तबा ज़ैनब ने हुसैन के बाजू से पकड़ के सवार करा दिया। अब हुसैन कहते हैं जुलजना ये तेरी आखिरी ज़हमत है, मुर्तजिज़ ये तेरी आखिरी ज़हमत है। मैं जानता हूं तू प्यासा है लेकिन इसके बाद तुझे ज़हमत ना मिलेगी। लेकिन मुर्तजिज़ ने चलने से इनकार कर दिया। इमाम रो कर कहते हैं क्या तू भी मेरा साथ छोड़ देगा? क्या तू भी मेरा साथ छोड़ देगा? जुबान मेरे हाल में कहता मौला मैं कैसे आपका साथ छोड़ दूं, जरा देखिए सकीना मेरे कदमों से लिपटी हुई। हुसैन उतरे, जुलजना के पिछले कदमों से सकीना लिपटी हुई थी। ऐ बाबा के घोड़े मेरे बाबा को मैदान करबला में ना लेके जाना। हुसैन उतरे, सकीना को उठाया, कहा बेटी क्या चाहती हो? खैमे में ले गए, और एक मर्तबा कहा बेटी खैमे का पर्दा हटाओ। खैमे का पर्दा हटा, का क्या मंजर है? का बाबा बाहर लोग प्यास से बिलबिला रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं। हुसैन ने जमीन पर तलवार से खत खींचा, पानी निकला। हुसैन ने कहा सकीना ये जो बाहर लोग प्यास से तड़प रहे हैं ये तुम्हारे बाबा के चाहने वाले हैं ये उम्मत रसूल है। बेटी पानी पियोगी या उम्मत को बचाओगी? मक्तल कहता है बीवी ने कहा बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए नाना की उम्मत को बचाइए, मेरे चाहने वालों को बचाइए। कहा बेटे तो फिर बाबा को चाहने की इजाजत दे दो। मक्तल कहता है बच्ची जो बाप के गले से चमड़ी हुई चिपकी हुई थी एक मर्तबा पीछे हटी, कहा चाहे बाबा अल्लाह हाफ़िज़, चाहिए उम्मत को बचा लीजिए। हुसैन चले, एक मर्तबा तलवार को बाहर निकाला, जुल्फ़िकार हैदरी निकाली, या अली मदद कहकर हुसैन ने कहा आओ तुमने मेरा अली अकबर मारा है, तुमने मेरा अब्बास मारा। और नहरे अलकमा के करीब आए और कहा अब्बास अब जरा अपने आका की जंग देखना। अली अकबर के लाशे के पास आए, बेटे जरा अब अपने गरीब बाबा की जंग देखना। कासिम मेरे लाल जरा देखना। अब अज़ादारों मक्तल कहता है हुसैन ने 12 हमले, मेरे इमाम ने 12 हमले किए, हर हमले में 10,000 की तादाद को फिन्नार किया हुसैन ने। इतना किताल किया हुसैन ने, मक्तल कहता है हुसैन की कोहनी से खून नदी की तरह बह रहा है। और एक मर्तबा किताल करते करते हुसैन ने नहरे अलकमा पे कब्जा किया। नहरे अलकमा पे कब्जा करके लश्कर यजीद से कहते हैं ऐ उम्रे साथ तू क्या समझता है, तूने ये पानी बंद कर रखा है, हम मशीयत के पाबंद, हम मशीयत के कैदी हैं, वरना ये पानी खैमों में खुद चल कर आता। अजीजों और एक मर्तबा खुराक को देख कर कहा तो फिर तुझ पर मेरा लिए असगर प्यासा
मेरा कासिम प्यासा मारा गया। अजीजो, अब हुसैन ने तलवार निकाली है, तलवार में हुसैन तलवार निकाल के मेमना और मैसरा को तहस नहस कर दिया, कल्बे लश्कर को चीर के रख दिया। मक्तल कहता है जब कल्बे लश्कर को चीर के पलटे हैं तो एक मर्तबा रसूल अल्लाह की जियारत हुई, सर पे अमामा नहीं है, बालों में खाक डाली हुई है, रीशे अक़दस में खाक है। रसूल कहते हैं बेटे कितना लड़ेगा, बचपन का वादा पूरा करने का वक्त हुआ चाहता है। बस हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी को नयाम में डाला, कहा वा इन लम, अगर नहीं बचता नाना का दीन, इल्ला बेकतली फया सयूफ खुज़ैनी वा इन लम यस्तकम दीना मुहम्मदन इल्ला बेकतली फया सयूफ खुज़ैनी, अगर नाना का दीन नहीं बचता मेरे कत्ल के बगैर, आओ तलवारों हुसैन के टुकड़े करो, तलवारें पलटी, नेज़े चले, तबर चले, तीर चले, जिसे कुछ ना मिला उसने जलती हुई रेत उठाई हुसैन के जख्मों में। इमाम सज्जाद से पूछा गया, आका आपके बाबा को कितने जख्म लगे हैं? इमाम रो कर कहते हैं जितने कुरान के हरूफ हैं उतने मेरे बाबा को रोजे आशूरा जख्म लगे हैं। और फिर इमाम रो कर कहते हैं ये अलिफ लाम मीम एक नहीं 3 हरूफ है। साइल ने पूछा मौला मैंने सुना है 965 या 960 जख्म लगे। इमाम सज्जाद कहते हैं ये तो नजर आने वाले जख्म थे, तलवार के जख्म के अंदर तीर के जख्म के अंदर नेज़े का जख्म दर जख्म लगे। और एक मर्तबा मक्तल कहता है 12,000 तीर चले, हुसैन तीरों में छुप गए, मज़ीने जुलजना पर हुसैन ना दाएं को है ना बाएं को, एक शोर उठ रहा है, गिरा दो फातिमा के बेटे को, गिरा दो अली के बेटे को, जिसने बदला लेना है। अजीजो अजीजो बस एक मर्तबा मेरा इमाम दाहने को उतरना चाहता है, नेज़ा मार के बाएं गिराया जाता है, बाएं को उतरना चाहता है, नेज़ा मार के दाएं गिराया जाता है। खुदा लानत करे हुरमला पर, इसने ऐसा तीर चलाया जो तीर आकर हुसैन के गुलूए अक़दस में पैवस्त हो गया। अब फातिमा का बेटा ज़ीने जुलजना पर संभल ना सका, एक मर्तबा दौड़ते हुए घोड़े की ज़ीन से हुसैन जमीन पर आए। अज़ादारों जुलजना ने हुसैन का तवाफ करना शुरू कर दिया, किसी को हुसैन के करीब नहीं आने दे रहा, किसी को हुसैन की, जुलजना तो नाम नहीं था ना, नाम तो मुर्तजिस था। जुलजना कहते हैं ऐसा जानवर जिसके 2 पर हो। मक्तल कहता है इतने तीर लगे थे कि जब दौड़ता था तो लगता है पर है इसके। अज़ादारो हुसैन ना ज़ीन पर है ना ज़मीन पर है। फातिमा ज़हरा का बेटा एक मर्तबा खूलिए मलून आया, उमर इब्न साद ने कहा हुसैन का सर ले आ। ये कहता है आया और कांपता हुआ वापस चला गया। उमर साद कहता है मैंने तुझे किस काम के लिए भेजा था? ये कहता है खुदा की कसम रसूल अल्लाह हुसैन के सिरहाने खड़े हुए हैं और कह रहे हैं मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या कसूर किया है, मैं ये ना कर सकूंगा। अजीजों बस एक मर्तबा वो मलऊन शकीउल कल्ब आया जिसको मलऊन शिमर कहा जाता है। फजलसा, ये रवायत है, फजलसा अला सदरे, ये दोनों पैरों के साथ हुसैन के सीने में सवार हो गया। अज़ादारों इसने हुसैन की रीशे अक़दस को पकड़ा, तमाचे मारे, गालियां बकी, रसूल अल्लाह को गालियां बकी, फातिमा ज़हरा की गुस्ताखी की। अब इसने ज़र्ब चलानी शुरू की है। अज़ादारों बस 2 जुमले 2 मरहले और बस मसाइब तमाम हो गए। जब पहली ज़र्ब चली मक्तल कहता है आदम ने मक्तल को छोड़ा और कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। दूसरी ज़र्ब चली, नूह ने कहा या नबी अल्लाह मेरे कलेजे में इतनी ताकत नहीं है। तीसरी ज़र्ब चली, इब्राहिम ने कहा बेटे मोहम्मद मैं तो इस्माइल को ना देख सकता था, ये तो फ़ख्र इस्माइल है। अज़ादारों चौथी ज़र्ब चली, मूसा ने छोड़ा मक्तल को। ज़र्बें चल रही हैं,
انبیاء مقتل چھوڑ رہے ہیں. 11ویں ضرب چلی. ایک مرتبہ محمد عربی نے کہا یا علی اب حسین تمہارے حوالے. یا علی اب حسین تمہارے حوالے ہے. 12ویں ضرب چلی. عزادارو علی نے کہا سیدہ جسے چچیاں پیس کر پالا تھا, جس کا ایک بال ٹوٹنے پہ ساری رات روتی تھی, حسین جانے اور آپ جانے ایک مرتبہ اذان کی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ. حسین نے نماز کی نیت کی ہے. اس ملعون نے حسین کے گلے پر خنجر چلانا شروع کیا. یہ کہتا ہے خنجر نہ چلتا تھا, امام نے میری جانب دیکھا, مجھ سے نہ دیکھ, میں امام کی آنکھوں کا سامنا نہ کر سکا. حسین کو اس نے الٹا پسے گردان ضرب چلائی, لیکن ضرب نہ چلی. امام نے کہا شمر میں تیری یہ مشکل آسان کیے دیتا ہوں, اماں میری گردن سے ہاتھ ہٹا دو. قد قتل حسین بن کربلا ذو الجلال اپنے سر کو خون سے رنگین کیا, خیمے کی طرف چلا. بیویوں میرا سوار مجھ سے جدا ہو, بیویوں میرا امام, واہ محمد واہ محمد. انہوں لاکھ تیرا تلوار نے اور پکڑ کے ضرور بالا